Which type of job do you want? I want government job. In which department? Education department. You want to be teacher like your mom. Her mom and dad both are teacher. Okay, both are teacher. Mom and dad both are teacher. She is lucky that she is the daughter of teachers. Okay, yes. Which type of job you want? Yeah, very nice. Yes, yes. I want job in civil service. Okay, I don't want job. ठीक है, असल बात क्या, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ. जैसे किसी को बताते हैं, लोगों को पता चलता है सर आप कोचिंग पढ़ाते हैं. हाँ पढ़ाते हैं. सर पढ़ा दोगे क्या? हाँ. फिर जैसे उनको बताते हैं कि क्या करते हो सर, या आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो लोगों का थोड़ा मन उदास सा हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, उनको पता है गवर्नमेंट टीचर बहुत बोर करते हैं ख़तरनाक तरीके से. उनको पता है कि पता नहीं अब ये पढ़ाएंगे तो सर स्कूल ही जैसा पढ़ाएंगे इधर भी. ठीक है, तो ये बात है कि जब अच्छे बच्चे सामने होते हैं तो पढ़ाने में एक अलग ही मज़ा आता है. ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि एक ही कैटेगरी के सारे बच्चे होते हैं लगभग, थोड़ा उनमें कम ज़्यादा इंटेलिजेंट होशियार होता है, होशियार कमज़ोर. बट हियर वी फाइंड अ वेराइटी इन स्टूडेंट्स. ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर. ओके, और ऑल द स्टूडेंट्स हैव द डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, और द टीचर एंजॉय द टीचिंग व्हेन द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस इन क्लास. If the students are like an empty vessel, students are like a empty mind, then they enjoy the class, they makes the class interesting because they raise number of question, they ask number of question. Okay, or the students are silent in class, they do not have any question, they do not make the class interesting. Teacher can never enjoy the class because the class depends, the class interest comes from the curiosity of the students. If the students are curious, they have number of questions, then teacher have a thousands of solutions. That's why each and every student should be very, very curious and thirsty for learning. If he is thirsty, he asks number of questions. Sir, what is the fact about this? What is the fact about this? Why the color of flower is red? Why the flowers have a color? Okay, what is photosynthesis? I am general talking about the science, but same thing in English. Why the silent letters are here? Why the words, why sometimes we pronunciate the difference, the pronunciation is different, and why the C and she, sometimes she pronunciate as sa, sometimes she pronunciate as ka. Why? So when the students have the number of questions, the teacher finds solutions and teacher try to satisfy the students, and that creates the interest in study. But generally it happens in our government school, students are fully silent in class. They are in the class, they have no thirst, they have no hunger, they are not eager to learn, neither they want to drink something nor they want to eat something. Okay, तो ये बात रहती है कि बच्चे जितने ज़्यादा भूखे और प्यासे आते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं. तो बच्चों को भूखा और प्यासा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, हर चीज़ पे प्रश्न करें कि ऐसा क्यों है. जब प्रश्न करते हैं तो बच्चा एक प्रश्न करता है, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं. राइट, ये बात है. हाँ, तो अब तुम बता दो कि फूलों का कलर लाल क्यों होता है, बता दो जल्दी. पिगमेंट के कारण तो होता है, वर्णक के कारण होता है, लेकिन क्यों होता है, उनका महत्व क्या है, फूलों का कलरफुल होने का महत्व क्या है भाई. कोई चीज़ क्या, अच्छा, उनको ऑब्जेक्टिफाइड करने के लिए. Right, this is the reason, to attract pollination, to complete the pollination process, to attract the insects and flies, ताकि वो फ्लाइज को, मक्खियों को, जो फुंदे रहते हैं उनको, तितलियों को आकर्षित कर सकें परागण की क्रिया के लिए. और प्रकृति में एक कितनी अच्छी बात है, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती. जब एक मधुमक्खी आती है, फूलों से फूलों का रस लेती है, उसके बदले में उसके पहले ही फूल अपना काम उससे करवा लेता है. उसके परागण उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूल पर जाके बैठती है तो वहाँ से उसका फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है उनका. ठीक है, और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो देखो, प्रकृति में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है. तू हमारा रस तो ले जा, लेकिन उससे भी एक काम करवा लेते हैं वो. और ये 2-3 प्रकार से होता है. हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है ना, वायु, जल, मिट्टी, हाँ, कीट परागण, ये प्रोसेस होती है.
चलो छोड़ो। तो वही है कि अब ऐसे अगर प्रश्न बच्चे क्लास में करें तो कितना मज़ा आता है कि बच्चे यही पूछ रहे हैं सर लाल क्यों होता है, ये चीज़ तीखी क्यों होती है ना, बरैया काट लेती है तो जलन क्यों पड़ती है। अगर बच्चे ऐसे प्रश्न करें तो कितना मज़ा आए। ठीक है, पूछना चाहिए ना क्वेश्चन। ये मत सोचो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कभी मत सोचो कि यार क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन पता नहीं उसको कहाँ कहाँ कनेक्ट हो जाए और कहाँ कहाँ लाइफ में काम आ जाए। क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। इन्होंने बोला कि बारिश की बूंदें, इन्होंने बोला नहीं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ये बोल रहा है कि बारिश की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं। तो बारिश की बूंदें गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पानी में पृष्ठ तनाव होता है और पृष्ठ तनाव तो होता है लेकिन गोल ही क्यों होती हैं। नहीं, बात वो है कि किसी भी कोई भी पृष्ठ तनाव तो होता ही है लेकिन गोल वस्तु का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए कोई भी वस्तु गोल शेप में आ जाना चाहती है। गोल का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, अगर उसी को फैला दोगे ज़्यादा जगह में होगा। और पृष्ठ तनाव गोल जब रहेगा तो उसके हर बिंदु पर बराबर बल लगेगा। अंडरस्टैंड? कोई वस्तु अगर चपटी है तो वो उस पर हर बिंदु पर बराबर बल नहीं लगेगा, क्योंकि मान लो कोई वस्तु अगर आयताकार है ऐसे या स्क्वायर है इस टाइप से, तो यहाँ इसका केंद्र है तो केंद्र से ये दूरी ज़्यादा होगी तो यहाँ बल कम लगेगा, ये कमज़ोर होगी, यहाँ से तोड़ा जा सकता है इसको। लेकिन यही वस्तु अगर गोल है ये, तो इसके केंद्र से हर पृष्ठ पर उसकी हर जगह बराबर बल लगेगा, इसलिए उसे तोड़ना मुश्किल होगा, उसे मजबूत हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि स्पोक लगे रहते हैं साइकिल में, आजकल तो एलॉय भी लाने लगे, स्पोक लगे रहते हैं, उसके बाद इतना वजन भर के ले जाते हैं, छोटे छोटे स्पोक पे टिका रहता है, क्योंकि वो अपने जो बल है उसको डिवाइड कर देता है पूरे में। सिर्फ जब पहले हम यही सोचते थे कि जब साइकिल का स्पोक नीचे रहता है तो पूरा वजन नीचे रहता होगा, ऐसा नहीं है। हर एक स्पोक उसके पूरे वजन को पूरी रिंग में डिवाइड कर देता है। इस वजह से बहुत साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो पुल बनते हैं, झूलने वाले पुल रस्सियों पर टिके रहते हैं, बिना पाया के पुल बनते हैं, सब जो है उनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत पे काम करते हैं। उसके पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, वो पावर डिवाइड कर देते हैं तो किसी एक बिंदु पर पावर प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए पुल टिके रहते हैं। अब चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंस का होता तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता, क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है। ठीक है, वो साइंस तो ऐसा विषय पढ़ने बैठ जाओ तो दिन भर हो जाए। यस, तुम दूसरे टीचर के यहाँ कोचिंग लगा लेते। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, तो अब इतना वीडियो काटना पड़ेगा। ठीक है, और डू यू वांट टू, चलो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुमने नहीं बताया अनुभव? यस, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? लक्ष्मण, वीडियो इज ऑन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? तुम क्या बनना चाहते हो लक्ष्मण? आई वांट टू बिकम, तुम अपना बता दो। आई वांट टू बिकम बॉडी बिल्डर। भैया सतर्क रहे ना इनसे, ये बॉडी बिल्डर बनना है। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? जे क्या बनना हो रहा है, जे कौन सा बनना है? कि वही वाला गाना गाओ, गौरा सांची बताओ, ये गाने जैसा कर रहा है ना, कैसे क्या करवा लो, भोले बाबा से भी आओ। ओके, अजीब बात। यस, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आई वांट गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी चाहिए तुम्हें सबको, है ना, और पढ़ाई नहीं करना बिल्कुल। सरकार में जैसे फ्री में घुस जाओगे क्या? ऐसे ही बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन भैया उतनी मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। क्या रहता है कि पेशेंस नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करो, खुद से कंपटीशन करो ना, खुद से कंपटीशन करो रोज, पेशेंस कुछ नहीं चाहिए। व्हाट, ये पूछ लिया ना, सी वांट सिविल सर्वेंट ना, यू वांट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। भाई प्राइवेट में क्यों जाना है तुमको? वाई? फॉर गुड सैलरी, राइट? ओके, ऑफ कोर्स, व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस and you run after your ability, then don't worry about the job, job will run after you, job आपके पीछे। गाडरवारा शहर में या किसी भी शहर में देखो कितने लोग जॉब करते हैं, कुछ गिनती के, लेकिन फिर भी कितने अच्छे सिस्टम चल रहा है। कौन चला रहा है इसको? यहाँ अच्छे कलाकार हैं, गायक भी हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले भी हैं, पेंटर भी हैं, टेलर भी हैं, शॉपकीपर भी हैं, है ना, और भी कुछ नहीं तो झाड़ा फूकी वाले हैं, बाबा भी हैं, कुंडली दिखावे के लिए आओ 50 रुपये। तो देखो लोग करते हैं अपना काम सभी,
तो एक ही काम से तो दुनिया चलेगी नहीं, और जॉब भी बेस्ट तो है नहीं। तो वही बात है, बट वाई दे आर सर्वाइविंग, वाई दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, बिकॉज दे हैव एबिलिटी, उनके पास योग्यता है। हम उनके पास जाते हैं, पेंटिंग कराना हो हम उनके पास जाते हैं, ठीक है, हमें सिलाई कराना हो हम उनके पास जाते हैं। वाई दे हैव एबिलिटी, योग्यता है उनके पास। द वन हु हैज़ एबिलिटी, he does not think about the job, he does not think about opportunities, because opportunities run after him, उसके पीछे भागती अपॉर्चुनिटी, अवसर उसके पीछे भागते हैं, ठीक है, ओके। देखो योग्यता का ये काम है। एक छोटी सी कहानी बताऊं। एक बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हर आदमी का किस प्रकार महत्व है मैं ये बताता हूँ। एक बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और इंजीनियर भी हैं, और उसमें शिक्षक भी हैं, और भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। अचानक बस रास्ते में ख़राब होती है। अब सब शॉक्ड, क्योंकि उनमें से कोई भी बस रिपेयर करना नहीं जानता, ना साइंटिस्ट बस रिपेयर करना जानता है, ना डॉक्टर जानता है, ना वो इंजीनियर जानता है, क्योंकि इंजीनियर कोई दूसरे ट्रेड का होगा, और ना ही शिक्षक जानता है। अब एक आदमी आता है, मैले कुचैले से कपड़े पहना, वो बोलता बताओ भैया क्या हो गया। वो आता है, बस के नीचे घुसता है, हथौड़ा एक दो जगह मारता है, एक बोल्ट देता है कि ये बोल्ट ले आओ। एक आदमी जाता है दौड़ के बाजू की दुकान से बोल्ट लेके आ जाता है, बोल्ट उसमें कस देता है। अब हाँ चालू। अब आदमी से बोला गया भाई कितने पैसे, 1000 रुपये। तो उसका नालायक 10 रुपये का बोल्ट लगाया है, 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये किस बात के? तो उसने कहा 10 रुपये तो आपके ठीक है बोल्ट के, लेकिन 990 रुपये इस बात के कि मुझे ही पता है कि कौन सा बोल्ट ख़राब है या कहाँ खराबी है, इस बात के। और इस खराबी को जानने में मुझे 30-35 साल लग गए कि कौन सा बोल्ट ख़राब होने से बस बंद होती। इस खराबी को सीखने में जो मेरे 30-35 साल का जो मेहनत है, उसका ये रिवार्ड है 990 रुपये। 10 रुपये का तो आपका बोल्ट है। उसने कहा मैं खोल दे रहा हूँ, लगा लो तुम्हें बोल्ट फिर से। उसने कहा नहीं भैया ठीक है, तेरे जेब पकड़ 1000 रुपये और निकल ले। तो यहाँ पे देखो सब थे, साइंटिस्ट थे, उस भी थे, उसके बाद भी एक मैले कुचले कपड़े वाले, एक मिस्त्री की कितनी आवश्यकता थी वहाँ पे। हर आदमी इम्पोर्टेंट है, बस वक्त की बात है। कोई आदमी तब तक आपके काम का नहीं है तब तक आपको मौका नहीं पड़ा, एम राइट? जिस दिन आपको मौका पड़ गया हर आदमी काम का है, और मौका नहीं पड़ा तो कोई काम का नहीं। आप सोचते हो अपने आप में हम मगन हैं, लेकिन जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, एक मैच्योर व्यक्ति हर आदमी में एक स्कोप देखता है, हर आदमी में एक संभावना देखता है, हर आदमी को एक अलग ही एंगल से देखता है, हर आदमी को एक अवसर के रूप में देखता है। और एक नालायक आदमी हर आदमी को भीड़ के रूप में देखता है। इसलिए चेंज योर एटीट्यूड, डू नॉट सी द पीपल एज अ क्राउड बट सी द पीपल एज अपॉर्चुनिटी, सी द पीपल एज टैलेंट एंड what different quality they have। ओके चलो, तो सबने बता दिया अपना। चलो, did you want to play? क्या आप खेलना चाहते थे? Yes I wanted। बेटा नाम क्या तुम्हारा? प्राची। यस बोलना है, उससे बात नहीं करो, ठीक है, इससे बात मत करो। नहीं। Did you want to play? Yes I wanted to play। Did you want to go? Hariom, don't talk to her। Did you want to go? Yes I wanted to go। Did you want to join this coaching? Yes I wanted to join this coaching। Did you want to visit America? I wanted। घूमने तो चाहते थे, ठीक है, लेकिन कोई ज़मीन लेने वाला ही नहीं मिला। ज़मीन बिक जाती तो घूमे आते। ठीक है, ओके। क्योंकि रेहाना आई थी डांस करने के लिए, तो 72 करोड़ ले गई रेहाना। अगर अपन लोग रेहाना को बुलाना चाहें तो 4-5 गांव की पूरी ज़मीन गांव शहर बिक जाएंगे, तब रेहाना के डांस की कीमत अदा कर पाएंगे। ठीक है। मुकेश अम्बानी का 1 दिन की 5 दिन की लगी होगी बस। मुकेश अम्बानी छोड़ो भाई, लेकिन अपन लोगों की बात कर, अगर हम रेहाना को डांस करवाना चाहें तो 4-5 गाँव पूरे बेचना पड़ेगा बिल्कुल जड़ से, तब 72 करोड़ 74 करोड़ हो पाएंगे। हालांकि इतना भी नहीं है, ये कहावत है, क्योंकि आजकल ज़मीन अपने यहाँ भी महंगी है। करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की एकड़ तो गाडरवाड़ा के आसपास की ज़मीन होगी, स्वाभाविक है। तो ऐसी 100 एकड़ ज़मीन बेच देंगे तब भी नहीं हो पाएंगे यार 72 करोड़ तो हो जाएंगे। कितना? 1 करोड़ का एकड़, तो 72 एकड़ बेचना पड़ेगी, है ना, तब जाके रेहाना को डांस करा पाएंगे अपन। ठीक है, 24 घंटे नहीं करती वो, 2-3 घंटे करेगी,
फिर यही है कि डांस अकेला देख पाएंगे। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वही है। यस, ठीक है। यस आई वांटेड, ठीक है। डिड यू वांट टू बाय मोबाइल? डिड यू परचेस मोबाइल? यस आई परचेस्ड। विच मोबाइल डिड यू परचेस? Did you join English coaching? Did you join English coaching? When did you join English coaching? I joined this coaching before कब ज्वाइन की भाई इंग्लिश कोचिंग? before 3-4 months. I joined English coaching yesterday, day before yesterday, before 2 months, before 3 months. Okay, ठीक है, चलो ठीक है। What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया था? What did you do yesterday? I didn't do anything. Yesterday I slept all the day. Yesterday हम दिन भर सोए, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, ओके। I did domestic work. किसी ने अपना घरेलू काम काज किया होगा, ठीक है। तुमने तो वही किया होगा, मैं घास लेने गया, फिर मैंने गैया लगाई, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने पूजा की, फिर भगवान जी प्रकट हो गए, फिर पूछने लगे क्या चाहिए बालक, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो अब वुड लाइक टू पूछ रहा है, ठीक है। वुड यू लाइक टू, पहले तो बिल से पूछ रहा है डायरेक्ट, विल यू कम टुमारो? कल आओगे? तुम दोनों कम बोलते हो, पीछे वाले दोनों तेज तेज बोलो। विल यू कम टुमारो? विल यू ड्राइव कार? विल यू स्पीक इंग्लिश? ओके। विल यू गो टू भोपाल? ओके ओके। विल यू गेट गुड जॉब? विल यू परचेस कार? इफ यू परचेस कार देन टेल मी विच कार विल यू परचेस इन फ्यूचर? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, विच कार विल यू परचेस? टेस्ला कार, यस। I will purchase Scorpio. Yes. Creta. Yes. I will purchase car. Thar. I will purchase Thar. तुम लोग वो अंकल टाइप की कार क्यों पसंद कर रहे हो? तुम लड़कियां हो के थार, वो तो आजकल के लड़के पसंद कर रहे हो। यस, BMW. Yes. I will purchase. यस। एक ने बोल दिया आई विल परचेस फॉर्च्यूनर, तो मैंने कहा अभी मैं स्पेलिंग पूछूंगा फॉर्च्यूनर की, बोले नहीं सर फिर मैं तो अल्टो खरीदूंगा, ALTO, फॉर्च्यूनर के चक्कर में, ठीक है। तो ऐसा रहता ना, एक आदमी मर के गया, एक आदमी मर के स्वर्ग में गया, तो उसको बोला गया कि तुम जो भी आए उससे स्पेलिंग पूछना, अगर वो स्पेलिंग बता दे उसके बाद स्वर्ग में उसको भेज देना, ना बता पाए नरक में भेज देना। कोई भी लड़की आए उससे स्पेलिंग पूछे, मिस की स्पेलिंग बताओ, लव की स्पेलिंग बताओ, लाइक की बताओ, उसकी खुद की पत्नी आ गई, उससे बोले चल चेको स्लोवाकिया की स्पेलिंग बता पत्नी नहीं बता पाई बेचारी की, जब नरक में अब तुम। तो ऐसा रहता है, लोग अपनों के साथ अन्याय करते हैं, है ना। तो फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हो तो स्पेलिंग में आना चाहिए, नहीं तो अल्टो ठीक है तुम्हारे लिए। यस। विच कार यू वांट टू परचेस? फोर्स। ये कौन सी कार है? फोर्स तो वो बच्चों वाली बस है वो स्कूल वाली। यस, 1.5 करोड़ की है, ठीक है भैया, हमें बिठा लेना, कहीं ले चलना। यस यस। ऑडी। देखिए, शिक्षक ही एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे कि मैं अपना खुद का बताऊं, ये सच बात है ये, और मैंने ये शायद लगभग सभी शिक्षक ये चाहते होंगे, पता नहीं क्यों। शिक्षक को बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं होता है। एक शिक्षक चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा तरक्की करें, मतलब विद्यार्थी। और हमारा ऐसा मन रहता है कि तुम आके हमें कहो कि सर मेरी आर्मी में नौकरी लग गई, सर मेरी पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया, सर मैं मतलब बैंक का चेयरमैन बन गया, या मैं बैंक का मैनेजर बन गया, या आप कहें कि सर जो हॉस्पिटल का मैनेजर मैं ही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक जब जिसको पता चल जाए, एक शिक्षक को, इस शिक्षक को इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती, जब उसे पता चल जाए कि जिस ट्रेन में वो बैठा है
उसका पायलट भी स्टूडेंट है, उसका ड्राइवर स्टूडेंट है, उसमें जो टीसी का स्टाफ है वो भी उसका स्टूडेंट है, और उसे पता चल जाए कि जो अभी फाइटर जेट उड़ रहे हैं उनमें से एक स्टूडेंट उनका भी है जो उड़ाता है, या उनको पता चल जाए कि सचिवालय में जो बंदा बैठा है वो उसका स्टूडेंट है, किसी न किसी टीचर का स्टूडेंट ही होगा वहाँ पे, तो उस टीचर को कितना अच्छा लगता होगा। तो ये बात है कि एक टीचर की ये भावना होती है कि उसके बच्चे बहुत आगे बढ़ें। मतलब ये है कि टीचर भले ही वहीं रहे, वही साइकिल से घूमता रहे, लेकिन वो चाहता है उसका बच्चा BMW से आए और देख ले मास्टर को साइकिल से आ रहा है, अरे सर BMW खड़ी करो, साइकिल ऊपर डालो BMW के, इसमें बैठो, बताओ कहाँ जाना है, छोड़ के आ रहे हैं। तो टीचर को मज़ा आ जाए यार ऐसा देख के। मान लो टीचर बेचारा धक्का खा रहा है, जनरल बोगी में घुस रहा है, उधर से स्टूडेंट आ गया, टीसी है, अरे सर कहाँ घुस रहा है, आओ AC में बैठो, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है सर, AC में बैठो, है ना। कभी एक आध स्टूडेंट ये कह दे, हम चाहते हैं कि सर हवाई जहाज़ में बैठे होगे, फाइटर जेट में नहीं बैठे होगे, आओ एक आध दिन फिर फर्राटेदार उड़ान भरवाएं आपको, भले ही मास्टर को अटैक आ जाए फिर उधर लेकिन स्टूडेंट तो कम से कम इतना करे। तो ऐसा टीचर सोचता है कि उसके बच्चे ऐसा ऐसा करें, ठीक है। अब संसद में, अब ऐसे संसद में हम जाएंगे 17 पापड़ बेलने पड़ेंगे तब संसद में घुसने मिलेगा। हमारा मान लो कोई स्टूडेंट विधायक या सांसद बन जाए तो वो तो हमें एक आवाज़ में ले जाएगा, सर संसद में चलो, कल चलो, 4 लोग जा रहे हैं, 5 की सीट है, आप भी चलो, ठीक, कितना मज़ा आए, ठीक है। तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छा मज़ा आता है जब उसके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए और अपने टीचर के संपर्क में रहना चाहिए, और अपनी जब सफलता मिले तो सबसे पहले टीचर को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? टीचर को और माता पिता को, क्योंकि आपकी खुशी को एंजॉय करने वाले बस 2-3 लोग ही हैं जो सच में एंजॉय करते हैं। एक आपकी माँ, एक आपके पिताजी, एक आपका भाई और बहन, भाई की भी गारंटी नहीं, बहन की है, और एक आपका शिक्षक। नहीं, बहन की सफलता को भाई एंजॉय करता है, लेकिन कई बार भाई भाई की नहीं करता, क्योंकि उन दोनों में कंपटीशन हो जाता है, किसी कारण से भेदभाव हो जाता है। अगर 2 भाई हैं, आजकल तो 2 भाई बहुत कम हो रहे हैं, पहले तो 2 ही 3 होते थे, तो उन दोनों में भेदभाव हो जाता है, लड़ाई भड़ाई होने लगती है, तो वो थोड़ा कंपटीशन करते हैं। पर बहन को बड़ी अच्छी खुशी होती है जब भाई सफल होता है, बहन सफल होती है तो भाई को खुशी होती है, और माता पिता को तो बाय डिफ़ॉल्ट खुशी होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो तो। और एक शिक्षक को भी बाय डिफ़ॉल्ट खुशी ही होती है कि उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये बात है। तो दैट्स वाई। अब वुड यू लाइक टू से पूछते हैं, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश?